We are talking about extractive industries in India, and I have given you the reference of the Mining Regulation 2023. And with the support of that, we have given ourselves some very basic NCERT supportive information that I should be aware of. What exactly is the nature of mineral distribution on the map of the country? Now, when I talk about Ministry of Mines, we don't take into reference atomic resources. There also the amendment is there. You are aware of the fact that we have removed 6 from the list of atomic minerals, which has now been granted to the private players. And we are also not aware of Ministry of Petroleum and Natural Gas. And before switching over, of course, Ministry of Coal, before switching over towards those ministries, minerals have got something very new added, and that has to be taken into our account. It comes up, it is called as deep sea mining, and we have got the Offshore Areas Mineral Development and Regulation Act. It is 2002 Act that has been amended as 2023. To get on to that, first have a reference of this particular image and interpret what is being applied as deep seabed mining. So when I talk about the reference of deep sea mining, we are basically correlating it to be with some of the massive resources. And these resources, as we have learned in our oceanography, that we can take up the reference of multiple resources that has been applied. I want to underline, deep sea mining is process of retrieving mineral deposit from areas ocean below 200 meters. 200 मीटर्स को याद करेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एक एलिमेंट्री या जो बेसिक या एवरेज डेप्थ है उसको जस्टिफाई करते हैं. सो जब व्हेन वी टॉक अबाउट डीप सी माइनिंग, अपने दिमाग में बेंथिक को लेकर नहीं चलते. डीप सी माइनिंग एनीथिंग व्हिच इज डीपर देन 200 मीटर्स. पहले ये चीज को याद रखना है. And it is a big diversity resources that we are having. Ferromanganese nodules, metal rich crust, sulfide deposit. आप अगर resources को justify करेंगे, these are the important deposits that have been identified for exploitation. And when I take up the reference of these exploitation, we can correlate them with a basalt plain, sea mount, and every other thing. So this is metals are generally the metal rich crust, which we have taken as say number 2, number 1, and number 3. So metals are generally found in the sediments surrounding hydrothermal vents, which are mineral rich rocks. आप सबको हाइड्रोथर्मल वेंट याद होगा, केमोट्रॉप्स के लिए हमने पढ़ा था, हैंड रेज कर दो. सो व्हेनेवर इट कम्स ऑन टू डीप सी माइनिंग, वी टेक अप फेरोमैंगनीज नोड्यूल्स, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स भी बोलते हैं इसको, सिंपल मैंगनीज नोड्यूल्स भी बोलते हैं, मेटल रिच crust एंड सल्फाइड डिपॉजिट. पहली चीज तो ये हो गई हमारे रेडार पर. अब दूसरी चीज जो इसके साथ एसोसिएट करनी है वो अमेंडमेंट के फैक्टर पर करनी है. सो आई जस्ट क्विकली गेट बैक. रेगुलेशन का जो फैक्टर होता है, बिकॉज नेचर ऑफ क्वेश्चन कैन बी एनी टाइप. आई मीन, I can encounter a question which can just ask me about which of the consider the following, which of them are considered as deep mining or deep minerals, deep seabed minerals, or who are the important agencies that are correlated with it. So United Nations Convention on Laws of Seas incorporate multiple vital partners, wherein International Seabed Authority and International Maritime Organization. आपको पोल्यूशन के साथ हमने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मार्पोल के बारे में बताया था. इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एज वाइटल पार्टनर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज is basically correlated with deep sea mining, regulation and control. ISA decides mining right to different countries as per the requirement of environment, coexistence, and every other thing. And ISA have given deep sea mining rights to India in Indian offshore reserves. And now we take the links that is correlated to it. 2019 का grant है, but because we know that there was COVID and there was lockdown, so things have delayed, but the point of reference continues. So it goes like offshore areas minerals. And when I take up the reference of this amendment act,
It is the amendment of 2002. So when I take the reference of, so it will replace 2002. Act का नाम सेम ही है और इसको कोई कहीं पर कोई फैक्टर पर डिस्टिंक्शन नहीं देना है. But when I talk about offshore area, I'm talking about all the offshore minerals, and offshore minerals will be including a territorial water, exclusive economic zone, and other maritime zones. That is the reason I've given you the introduction of United Nations Convention on Laws of Seas. अच्छा, इसमें जो आप demarcation दे रहे हैं वो है application of composite license. Composite license मिलेगा for production and exploration. आप production में भी ले सकते हैं, exploration में भी ले सकते हैं, whichsoever is your field of expertise. Private participation के लिए. अच्छा, when we take up the reference of the mobilization, ऑपरेशनल लाइसेंस जो है वो कॉम्पिटिटिव बिडिंग पर आएगी. और जो तीसरी चीज है 50 years ऑफ द लीज पीरियड है. 2002 में आप बहुत आराम से देख सकते हो डिफरेंट लाइसेंसेस वर बीइंग प्रोवाइडेड. कॉम्पिटिटिव बिडिंग की जगह ग्रांट, कंसेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेशन होता था. मतलब यू वांट टू एनहांस प्राइवेट पार्टिसिपेशन. तो अगर हम इसको इस पॉइंट को हाईलाइट करें, रिप्लेसिंग दिस, तो कॉम्पोजिट लाइसेंस की जगह ओल्डर टाइम्स में क्या था, variable license, or you can take up different licenses. So there were different licenses being provided for different activity. अब यहाँ पर composite है. Competitive bidding की जगह क्या था, administrative allocation था. तो इस तरह का कोई question भी आ जाए तो आप आराम से justify कर सकते हो. और lease period जो था maximum of 30 years था. तो ये आप तीनों अमेंडमेंट्स को एक साथ अप्लाई कर सकते हो 2002 एंड 2023 को डिमार्केट करने के लिए. सो दैट विल मेक द थिंग्स इजियर फॉर यू. सो डिफरेंट लाइसेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव अलोकेशन 30 years. तो चेंज ओवर हो गया. आई थिंक इट हैज बिकम इजियर फॉर यू. एंड व्हेन आई टेक रेफरेंस ऑफ इट्स प्रोविजन, पॉलिसी प्रोविजंस, आई हैव टू ऐड टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. अटॉमिक मिनरल लिखने की दोबारा से जरूरत नहीं है, पिछली क्लास में बहुत क्लियरली समझाया था. को सिर्फ मतलब ऑफशोर अटॉमिक मिनरल्स जो होंगे दैट विल बी ग्रांटेड ओनली टू. स्ट्रैटेजिक में आज भी इंक्लूडेड है, आपको बताएंगे, हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात करना है. और एक और चीज जो हमने ऐड कर दी है वो ऑफशोर एरिया मिनरल ट्रस्ट बना दिया है. विल मैनेज ऑल द फंड्स अंडर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया. थोड़ा सा याद करो, आउट ऑफ कंटेक्स्ट रिमाइंडर दे रहे हैं, बट आई थिंक इट विल हेल्प यू इन कंसोलिडेटिंग. When we talked about Champas, we said every collected fund is kept outside consolidated fund of India. Here we are taking up the reference of it. And remember always, offshore mining is all the depth more than 200 meters. I've already told you, offshore mining is deep sea mining, and offshore mining references are being applied here. Go ahead, दो जल्दी से एक image दिखाकर आगे बढ़ेंगे. फिर we'll get on back to onshore factor. Offshore areas mineral mining regulation amendment act 2023 is a replacement of 2002. 2002 act had the provision of providing license for different players for different activities. Exploration के लिए अलग, production के लिए अलग. 2023 में it's composite license. 2002 में the allocations were done on the administrative grants. Administrative grants are giving you the allocation. Here it is competitive bidding. Lease period maximum up to 30 years. Now it is 50 years. So stability आप दे रहे हो. Atomic mining by default अलग रखा गया. आप इसमें आराम से add कर सकते हो. The 6 which is removed from the list is automatically removed from here. And offshore area mineral trust, which will be taking all its funds management from public accounts of India. Deep sea mining का location और logic बिल्कुल वही रहेगा जो यहाँ पर है. और इसमें आप एक ये वाला पॉइंटर को जरूर से ऐड कर लीजिए. And I think this is going to give you an ease. ये होता है डीप सी माइनिंग. इकोनॉमिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात हो रही है यहाँ पर, ये चीज को हमेशा याद रखेंगे. इट इज इकोनॉमिक कॉन्टिनेंटल शेल्फ, क्योंकि आप सबको पता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ का विड्थ वेरी करता है, तो आप कोई स्टैंडर्ड पर व्यू नहीं दे सकते उसको. नॉटिकल माइल्स के बारे में जब आप बात करते हो, टेरिटोरियल वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, दीज आर मरीटाइम जोन्स वेयर यू आर हैविंग ऑन द रेफरेंस ऑफ national jurisdiction. So from the appropriate baseline, it is the territorial baseline being shown here.
The territorial sea is up to 12 nautical miles and exclusive economic zone is up to 200 nautical miles. हमेशा याद रखना, sovereign rights of water column and continental shelf and sovereign territory. Sovereign territory and sovereign rights में different होता है. Territory is my political jurisdiction. Here I will deploy my naval fleet. Laws of land will be implied. And that is where it is my territory. So 12 nautical miles is my territory. And 200 nautical miles is where I have sovereign right on the water column and continental shelf, wherein I'm not the political authority, but I have the highest authority to utilize the resources. And दोनों ही केस में आप extension देख रहे हो, उसको भी notice कर लो. Contiguous zone is extension of territorial water not beyond 24 nautical miles. And 350 nautical miles is the possible extension of exclusive economic zone, जिसको आप economic continental shelf बोलते हैं. उसके beyond का जो area है वो पूरा का पूरा open sea या high water कहा जाता है, which has no national right. Sovereign rights on continental shelf can be up to 350, water column and continental shelf is 200. तो इसको ऐसे समझ लो कि exclusive economic zone का maximum extension only on continental shelf. Mane there is certain mineral resources that has been found till 350 nautical miles. ISA will be considering the countries that have got EEZ associated with it. Are you getting it, class? Contiguous zone is extension of territorial water and 350 nautical miles is extension of economic continental shelf. ऐसे करके देखेंगे. Innocent passage था 1974 के United Nations Convention on Laws of Seas के लिए. 1984 से इसको ट्रांजिट पैसेज बता दिया गया. और ट्रांजिट पैसेज का सीधा मतलब है that no merchant vessel whatsoever is your geopolitical equation if is passing via Suez Canal को याद करो, Panama Canal को याद करो. When we take up the reference of these, Suez Canal falls into actually inland territory of Egypt, second most prominent trading route of the world है. तो इजिप्ट तो बड़े आराम से किसी भी वेसल को रोक सकता है, वो नहीं रोक सकता है. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज आइडेंटिफाइज ट्रांजिट पैसेज राइट टू एवरी मर्चेंट वेसल. तो जो आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट पर आएगा वहां पर आपको उसको ट्रांजिट पैसेज देना पड़ेगा. You do have got the legitimate right of taking on the charges, the transit charges, which is making you earn surplusly. So जो आप deep water की बात करते हो वो सारा का सारा 200 meters and below है, माने beyond territorial water है. Territorial water में आपको ISA का नोट नहीं लेना. And that is the reason freedom of navigation and overflight you can see is demarcated from here. क्योंकि आपका टेरिटरी खत्म हो गया है. I think this is comfortable. Maritime zones under United Nations Convention on Laws of Seas. Do remember there can be a possible question towards it also. Chaliye. Now we are going back and we are picking up the reference of study that is related to some important resource factor. So एक के बाद एक pick up करते जाते हैं और apply करते हैं. So I want to first go to board and then I'll come back to which can include any resource. Of course, commercially exploitable involves three categories. I have to include Ministry of Petroleum and Natural Gas. And when I take Ministry of Petroleum and Natural Gas, offshore areas, how? Please try to take up with the reference of India is not a very big producer when it comes to crude oil. Ministry का नाम भी Ministry of Petroleum है, crude oil नहीं है. Petroleum इसलिए है because we know that one of the most consistent trade item of our country is petro products. We import more than 80% of our crude oil requirement, but value addition का benefit है हमारे पास, and we refine and we have what. तो अगर imported item का most consistent constituent crude oil है, तो petro product is the most prominent export item. So when I talk about Ministry of Petroleum and Natural Gas, I automatically need to take the reference of refineries. उसके बिना काम नहीं होता. Refineries को पढ़ने से पहले pipeline को पढ़ना जरूरी हो जाता है. जब आप pipelines को पढ़ते हो तो you have to understand that I can have gas pipeline. तो gas pipeline लिया तो gas production area को लेना पड़ेगा.
क्रूड पाइपलाइन हो सकता है और प्रोडक्ट पाइपलाइन हो सकता है, और इन ऑल ऑफ देम कैन कोरिलेट विद मल्टीपल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बिकॉज वंस यू आर अवेयर ऑफ देम then it becomes easier for us to take the PSC's regulation, which we'll talk about as we'll change over towards the manufacturing segment. तो मेरा स्टडी अब यहाँ पर कहाँ जा रहा है? माइनिंग, प्रोडक्शन, but production is very restrictive, so it is more about transit and thereby the mobility. जिसमें pipeline थोड़ा सा bulkier head रहेगा, and we are getting on there. So अब I'll come back to board again. पहले फटाफट से मैप को ओपन करते हैं. डिफिकल्ट मैप है, थोड़ी देर ध्यान से देखना, इसलिए आपको ऑफशोर से पहले ही बता दिया, ठीक है? अब वो उसको ध्यान से देखते जाना. अप्लाई योर नॉलेज ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्व्स एज यू हैव लर्न्ड फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है? अब इसमें नोटिस क्या करना है, ध्यान से नोटिस करेंगे. व्हाट आई डू इज आई टेक अप अ वेरी डिफरेंट कलर, लेट इट बी ब्लू फॉर अस, एंड आई एम डिमार्केटिंग आउट इंडियन मेनलैंड शोर लाइन, ताकि डिस्टिंक्शन लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाए. दिस इज माई मेन लैंड शोर लाइन, ठीक है? अब इसको हम इस पार्ट को हम थोड़ा सा जूम अप कर लेते हैं, और आप नोटिस करेंगे कैटेगरीज को. कैटेगरी 1 डिमार्केटेड एज कैटेगरी 1 बेसिन, प्रूवन कमर्शियल प्रोडक्टिविटी. अब प्रूवन कमर्शियल प्रोडक्टिविटी किधर जा रहा है? ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, दोनों के डोमेन पर बात कर रहे हैं. नोटिस करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट मैप है, and it will give you the demarcation. So proven category में you are incorporating this entire belt that correlates with offshore region. Are we noticing? And this is the location where we have Mumbai. And if you continue to see this location that is going on with your Cambay to Rajasthan region, that is onshore. हम onshore constituent को भी थोड़ी देर बाद पिकअप कर रहे हैं. तो I have written it as number 1 here, A, and I have written its name here. It is in the category of orange, so Mumbai High has evolved on. If I take up the reference towards east, you can notice continental shelf में ये सारा का सारा डोमेन जो आपका ऑफशोर है, you are picking up कृष्णा गोदावरी बेसिन. Are you noticing? ये हुआ हमारा ऑफशोर. अब आप इनको ऑनशोर डोमेन पर ले जाओगे तो यू कैन टेक अप दी डिमार्केशन ऑफ दिस कैम्बे. यहाँ पर पूरा अंकलेश्वर, यहाँ पर बाड़मेर, यहाँ पर डिगबोई, नाहर काटिया, आपको बताया था असम वैली पूरा. आप when you talk about northern plains, they are resource deprived, but when I take up the reference of Brahmaputra basin, that has got the location. So दुमदुमा, नाहर काटिया. अच्छा, अब इसी में अगर हमें एड ऑन करना पड़े names that are related to natural gas, तो आप यहाँ पर पिकअप करो हजीरा, हजीरा इन गुजरात, बाड़मेर राजस्थान में एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर आप रवा गैस फील्ड को ऐड करेंगे. रवा गैस फील्ड इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये सब जा रहा है कैटेगरी 1, प्रूवन कमर्शियल प्रोडक्टिविटी. क्वेश्चन बन सकता है बहुत आराम से. सो विच आर दी सेडिमेंट्री स्ट्रेटास वेयर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस is having its functioning. It incorporate the categories on and offshore both. Category 1, category 2, category 3 आपको demarcation रहना चाहिए. So category 2 comes up with pink color, and pink color you are noticing right here. I'm labeling it again with black. Number 2 mark कर दिया यहाँ. Identified prospects. You can notice it is related to Kutch. You can notice it is related to your Utkal plains. ऐसे छोटे छोटे नाम आपको याद होने चाहिए, because we can have the question based on them. Category 3 is prospective basins. माने the next exploration I can apply out the areas there. येलो है और बहुत बड़ा बेल्ट दिख रहा है. नोटिस करो कि सारा नदर्न प्लेन्स जिसको हमने रूल आउट कर रखा है रिसोर्स के लिए अभी तक, वो सब इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग योर सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, एंड ये पूरा बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश Chambal Valley. Some locations are identified with Kathiawar and the Kerala Konkan belt. ये आपका offshore आ गया, because I have already highlighted out the reference. और ये आपका onshore के साथ साथ offshore भी है, Kathiawar. नाम याद होंगे. नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 को आप सेपरेट आउट कर दो, उनके बारे में छोड़ दो, बिकॉज दे आर गोइंग ऑन विद द डिस्टिंक्टिव लोकेशन. पोटेंशियली प्रोस्पेक्टिव से और वीकर डिमार्केशन हो गया. और जो आपका प्री कैम्ब्रियन बेसमेंट रॉक है, दिस इज नंबर 4, दिस इज नंबर 5,
ये याद आ रहा है ना, नंबर 5 सारा किसके साथ जा रहा है, सब आपका क्रेटोनिक ब्लॉक है। ये आपका पूरा एरिया ऑफ ब्लैक सॉइल रीजन है। और ये रहा आपका डीप सी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो आपको 200 आपको बताया था, we can have 200 meters, 3000 meters, you can take up the depth that is going on, and this is my boundary line of exclusive economic zone. इस मैप को अगर आपने 10 मिनट तक अपने दिमाग के सामने रखा तो आप बहुत बड़े एरिया को जस्टिफाई कर सकते हैं, जिसमें लेबल्ड 1 2 3 एरियाज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। वन वेयर वी आर प्रोड्यूसिंग, सो विच आर द प्रोमिनेंट प्रोडक्शन एरिया। एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। नेचुरल गैस में इंडिया इज स्टिल जस्टिफाइड टू बी हैविंग वेरी साउंड प्रोस्पेक्ट, क्रूड ऑयल के लिए नहीं। एंड क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन पर भी इंडिया में कहां पर है, तो क्रूड ऑयल के लिए आप लो महाराष्ट्र, क्रूड ऑयल के लिए लो आप गुजरात, क्रूड ऑयल के लिए आप लो राजस्थान, और क्रूड ऑयल के लिए आप ले लो असम। और जैसे आप नेचुरल गैस के लिए लेने के लिए आओगे, असम को डिलीट कर देना है, आंध्र प्रदेश को आप दोनों के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, महाराष्ट्र को दोनों के साथ कर रहे हैं। असम में वी आर हैविंग क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, नेचुरल गैस प्रोडक्शन का जस्टिफिकेशन नहीं है। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट द बेसिन्स वेयर देयर आर द कमर्शियल प्रोडक्शन, तो बेसिन्स का डिमार्केशन है on the basis of what is the nature of exploitation. So category 1 where commercial production is started, category 2 जहां पर commercial production की possibilities identify हो गई, 3 जो prospective basin, उसके आगे जो 4 and 5 है, they are basically applied to be in very long futuristic purview। थोड़ी सी clarity आई है। बॉम्बे हाई, हजीरा, or when I take reference of Rawa gas field, they are offshore demarcation, and offshore mining में वो territorial water के विद नहीं आ रहे, इसलिए वो deep sea mining में नहीं आएंगे। टेरिटोरियल वाटर में डीप सी माइनिंग का फैक्टर नहीं आएगा, बिलो 200 मीटर्स में डीप सी माइनिंग का फैक्टर आएगा। आई एम गोइंग टू माई बोर्ड नाउ, and as I'll be plotting out the information, I'll be asking you to give me the demarcation of it. Okay, so here comes Ministry of Petroleum Natural Gas। ऑफशोर कंसर्न हमने देख लिया, कैटेगरी 1, ऑनशोर ऑफशोर दोनों डिमार्केशन है। अब पॉइंट आता है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन जोन्स दैट वी कैन अप्लाई ऑन, बिकॉज उसी के हिसाब से फिर हम रिफाइनरीज को एसोसिएट कर सकेंगे। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जस्टिफाई करनी है वो ये है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस largely including Maharatnas can be divided into production and exploration, processing, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत क्लियर डिवीजन हो जाएगा, and it will become easier for you to understand also. So when I talk about production and exploration, I take Oil and Natural Gas Commission, Gas Authority of India Limited, and Oil India Limited, ONGC, Gas Authority of India Limited, and Oil India Limited. These are the three principal players when it comes to production and exploration. ठीक है, अब जब ONGC की बात करते हो तो ONGC के फंक्शनिंग ग्राउंड का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है OVL, ONGC Videsh Limited. And when I talk about ONGC Videsh Limited, it is basically OVL present in more than 22 countries that is giving ONGC that status of Maharatna, because you need to understand that when I take up ONGC with the production purview, it doesn't have that much of the indigenous production. It's a fully owned subsidiary of ONGC. And as I said, it has got the presence of multiple players altogether. Gas Authority of India Limited के साथ थोड़ा सा important demarcation लेना है तो बड़ा list create होगा, थोड़ी देर में बताते हैं। Gas Authority of India Limited is correlated with the major pipeline networks in the country, and I just keep that in reserve. I'll talk about it. And when I talk about the gas pipeline factors, I have got city gas pipeline, national gas pipeline. I'm just taking you there. And when I talk about Oil India Limited, it is largely correlated with northeastern region. And which are the production areas for them? We have already learned category 1, category 2. Category 1 जहां पर commercial production शुरू है, category 2 जहां पर highest potentiality. So production and exploration में I have got very limited list.
बट व्हेन इट कम्स टू प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग लिस्ट बहुत एक्सटेंसिव है। उस लिस्ट को जज करने के लिए पाइपलाइन को भी समझना पड़ेगा और लिस्ट को भी डिफाइन करना पड़ेगा। सो आप पहले मुझे गो अहेड दो यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़े। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विल बी अ स्लाइट बल्कियर एंड द ट्रिकियर टास्क। फैक्ट्स को पिकअप करते जाते हैं और उसके बाद जस्टिफाई करते हैं। सो व्हाट आई डू इज आई पाइपलाइन नेटवर्क्स। अब पाइपलाइन नेटवर्क्स को एक पॉइंट पर डिमार्केट आउट करना तो बहुत मुश्किल काम है, तो हम क्या करेंगे, पाइपलाइन नेटवर्क्स को डिस्टिंग्विश करेंगे कैटेगरीज में। तो जब आप पाइपलाइन नेटवर्क्स को डिस्टिंग्विश करते हो कैटेगरीज में, इट कम्स आउट टू बी इनटू प्रिंसिपल ग्रुप्स एज नेशनल एंड देन रीजनल। तो आप पाइपलाइन के फैक्टर को प्रोड्यूसर्स के साथ अप्लाई करें, जिसमें हम दोनों लेकर चल रहे हैं, क्रूड एंड प्रोडक्ट। आप देखो कि आपको कितने आराम से चीजों को याद करवाएगा। फिर हम गैस पाइपलाइन की तरफ चलेंगे। जब हम पाइपलाइंस के बारे में बात करते हैं, क्रूड एंड प्रोडक्ट, आई इंक्लूड डिगबोई बारौनी लाया मथुरा एज माई प्रिंसिपल पाइपलाइन। उसके बाद फिर मेरे पास छोटी छोटी पाइपलाइंस है जिनको हम आराम से समझ सकते हैं, देयर नेम विल बी स्पीकिंग देमसेल्व्स। अब डिगबोई बारौनी सलाया मथुरा एज द मेजर नेशनल पाइपलाइंस रेगुलेट्स लोकेशन ऑफ रिफाइनरीज and thus product pipeline। ठीक है, अभी हम आपको ये पाइपलाइन समझा रहे हैं। अब let me make that clear on the map। अब आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है, नोटिस करते जाओ। और मैप ऑफ इंडिया आप अपने सामने ओपन कर सकते हैं। डिगबोई, नाहरकाटिया, बोंगाईगांव, गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, बरौनी, गोरखपुर, कानपुर, बरौनी, सिंदरी, हल्दिया, कोलकाता। From Digboi, the pipeline to Sibsagar, to Guwahati, to Bongaigaon, to Siliguri, to बरौनी। तो मेरे पाइपलाइन का तो नाम ही है डिगबोई बरौनी पाइपलाइन। तो ऐसा लगता है कि पाइपलाइन तो खत्म हो गया, पर नहीं खत्म हुआ। बड़ा कहाँ से, बाइफरकेट हुआ, बाइफरकेट होकर गया, ये पहुंचा है गोरखपुर, और गोरखपुर से वाया जगदीशपुर पहुंचता है कानपुर। कानपुर में इंडिया का डोमिनेटिंग फार्मास्यूटिकल सेंटर है, वडोदरा, कानपुर एंड हैदराबाद। आपको लगातार बताया वी डोंट हैव एनी रिसोर्स बेस इन दिस रीजन। तो फिर भाई ये कैसा हो सकता है, कानपुर जैसा सिटी इतना इंपॉर्टेंटली सिग्निफिकेंट हो जाएगा पाइपलाइन के फैक्टर पर। तो ये हमने ऐसे हाईलाइट कर दिया। मैप पर थोड़ा सा डेविएटिव हो सकता है, नो प्रॉब्लम्स, बट काम बन जाएगा। अच्छा, बरौनी से पाइपलाइन डेविएट होकर गया सिंदरी पर। सिंदरी याद करो, पहला फर्टिलाइजर प्लांट है हमारे कंट्री का। उसके बाद वो आएगा अब इसमें नाम जो आपको याद रखने हैं, रखने तो सारे नाम याद है, पर एक पकड़ो दिगबोई, दूसरा पकड़ो गुवाहाटी, तीसरा पकड़ो बोंगाईगांव, चौथा पकड़ो बरौनी, पांचवा पकड़ो हल्दिया। और अपने अपने दिमाग में डाल लो कि आपने 5 रिफाइनरीज याद कर ली ऑफ IOCL। कौन से पाइपलाइन के साथ, डिगबोई बरौनी पाइपलाइन। जल्दी से हैंड रेस करके बताइए क्लास। गुवाहाटी। Digboi Barauni pipeline extends from Digboi. Digboi is country's oldest functioning refinery. इसके पास क्रूड ऑयल कहाँ से आ रहा है, असम में बताया ना, कैटेगरी 1 क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एरिया है, दुमदुमा, नाहरकाटिया। From Digboi, the pipeline is transferring the crude oil to Guwahati. Guwahati आपका रिफाइनरी नंबर 2 हो गया। वहां से जा रहा है बोंगाईगांव, रिफाइनरी नंबर 3 हो गया। वहां से जा रहा है ये बरौनी, रिफाइनरी नंबर 4 हो गया। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट में बरौनी है, सो ध्यान से याद रखेंगे। तो IOCL की 5 रिफाइनरी तो मेरे राडार पर आ गई। पाइपलाइन नंबर 2 बताया, दूसरा पाइपलाइन को पकड़ोगे तो वो फिर आपको और आसानी से बता देगा। थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनेट फैक्टर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पाइपलाइन फैक्टर को हटाएंगे। पहले जल्दी से बताओ, बड़े आगे सिबसागर। पाइपलाइन को याद करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं। और पाइपलाइन याद हो गया तो रिफाइनरी याद हो गया, रिफाइनरी याद हो गया तो मेरा वर्ड ले लो कि जैसे हम बात करेंगे whether we talk about PLIs, wherein the pharmaceutical sector is very important, or fertilizer sector is very important, आपने हाफ बैटल तो वहीं पर ही विन कर लिया।
कलर को बिल्कुल डिफरेंट कर लेते हैं ताकि कोई ओवरलैप में परेशानी नहीं आए। वी आर पिकिंग अप नाउ द अनदर पाइपलाइन विच इज रेफर्ड एज सलाया मथुरा पाइपलाइन। सलाया जो है वो एक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है इन गुजरात। सलाया से मेरी पाइपलाइन जाती है टू प्लेस कॉल्ड कलोल, कलोल इन गुजरात, है ना। सलाया से कलोल पहुंचेगी, कलोल से उसको जाना है सवाई माधोपुर, वहां से वो जाएगी कोटा, कोटा से वो आगे बढ़ेगी तो पहुंचेगी मथुरा, रफली यहाँ पर पहुंचेगी। एक थोड़ा सा ओवरलैप आ गया, हाईलाइट कर देते हैं, नाम अभी लिख दे रहे हैं, डोंट वरी। मथुरा से मेरी पाइपलाइन जो है वो एंटर करती है पानीपत, रफली है। पानीपत से पाइपलाइन को आपने करना है बाइफरकेट, बाइफरकेट करके एक को तो ले जाओगे आप भटिंडा और दूसरे को आप ले जाओगे जलंधर। सो जलंधर इधर हो जाएगा, भटिंडा इधर हो जाएगा। हम ज्योग्राफिकली अप्रोप्रिएशन दे रहे हैं, एब्सोल्यूट नहीं दे रहे। अब सबके नाम लिख रहे हैं और आप सब इनको नोटिस करते जाएंगे एंड यू विल ट्राई टू अप्लाई इट वेरी कॉशियसली विद योर लर्निंग। चलो पिकअप करना शुरू किया। सलाया से मेरी पाइपलाइन पहुंची है, कलोल से मेरी पाइपलाइन पहुंचती है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर याद करो, हमने आपको बताया था विद लाइमस्टोन प्रोडक्शन इन राजस्थान। वहां से ये पहुंच रही है कोटा, कोटा से ये पहुंची है मथुरा, मथुरा से पाइपलाइन ने एंटर किया है पानीपत, पानीपत इज इन हरियाणा। पानीपत से पाइपलाइन हुई है बाइफरकेट, और बाइफरकेटेड पाइपलाइन जो है एक गई है जलंधर, दूसरी गई है भटिंडा। और फिर से हाईलाइट कर देते हैं, मथुरा इज रिफाइनरी ऑफ IOCL, पानीपत इज रिफाइनरी ऑफ IOCL। IOCL की 7 रिफाइनरी आपके पास आ गई। आप मुझे जल्दी से हैंड रेस करके गो अहेड दोगे। IOCL की 2 और रिफाइनरीज आपके पास आ गई। माइंड इट, IOCL इज महारत्ना व्हेन इट कम्स टू ऑयल मार्केटिंग, when it comes to oil marketing. ONGC is in production. अब लिस्ट बनाओ, कितनी मुश्किल होती है लिस्ट बनाने में। IOCL in processing and marketing, बताया आपको पहले ही, includes 9 refineries of its own। 7 तो समझ में आ गई, अब 2 कौन सी रह गई? एक है पारादीप, रफली है सीपोर्ट ओरिएंटेड हो गया, और दूसरा है कोयाली, रफली है पोर्ट ओरिएंटेड। 9 IOCL रिफाइनरी हो गई। अच्छा, IOCL के साथ आता है CPCL। CPCL इज इट्स फुली ओन्ड सब्सिडरी, तो फुली ओन्ड सब्सिडरी को भी मिला लो तो इसके पास 2 और रिफाइनरी हो गई। मतलब IOCL के पास इन टोटल 11 रिफाइनरीज हैं। CPCL स्टैंड्स फॉर चेन्नई पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, और इसकी जो रिफाइनरीज हैं वो चेन्नई और नागापट्टिनम में है, तो इनको मार्क कर दो। पाइपलाइन के साथ पिकअप किया तो नाम आसान हो गया। मुझे गो अहेड चाहिए। Salaya in Gujarat, have I not shown you the map of oil production, Akshay? Your question is having the answer. Yes, Salaya is extraction. आपको बताया ना कि जो आपने डिमार्केशन लिया है कैटेगरी 1, समझ में आ रहा है किस सीक्वेंस के साथ आपको पढ़ा रहे हैं? कैटेगरी 1 कौन सा होता है? जहां पर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन चल रहा है ना, यस नो, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन चल रहा है ना, आप उसी मैप के साथ इसको ओवरलैप करो। तो डिगबोई में प्रोडक्शन नहीं है, डिगबोई एक्सट्रैक्शन एरिया नहीं है, रिफाइनरी है। प्रोडक्शन कहां पर है? दुमदुमा नहर काटिए। सलाया वाला प्रोडक्शन कहाँ गया? जो आपका ऑन शोर बेल्ट चला गया, बॉम्बे हाई से हजीरा होते हुए। आगे बात समझ में? अच्छा, अब क्या करते हैं, अब एक अपनी स्विफ्ट लिस्ट को तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे सेंटर्स को हम मैप पर मार्क नहीं करेंगे, तो हमने, क्योंकि पाइपलाइन मैप पर थोड़े आराम से समझ में आता है, तो आई विल गो बैक टू माय बोर्ड। आपको बताया डिगबोई बरौनी पाइपलाइन, सलाया मथुरा पाइपलाइन। अब आपको ये पाइपलाइन तो समझ में आ गया। अब इसी पाइपलाइन के रेफरेंस में क्या नोटिस कर लेंगे, जल्दी जल्दी से नोटिस कर लेंगे दी रिफाइनरीज। तो रिफाइनरीज को जज करने के लिए जैसे हमने आपको बताया, आई क्रिएट द लिस्ट हियर, क्योंकि लिस्ट थोड़ी सी लंबी है। IOCL नाम सारे बता दिए हैं, तो इसलिए सिर्फ लिखेंगे 9 रिफाइनरीज, एंड CPCL के 2 रिफाइनरीज। इन दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, एंड वी विल बी काउंटिंग इट एज 1 because we know that CPCL is fully owned subsidiary. ये अपने आप ही बता दे रहा है that this is the main player here,
अब वो प्रूफ करने के लिए हमारी लिस्ट थोड़ी सी आगे बढ़ती है। When I take reference of CPCL and recognize the other HPCL को लीजिए। HPCL की 3 रिफाइनरीज हैं, एक है मुंबई में, इसलिए मुझे मैप पर मार्क करने की जरूरत नहीं है, दूसरा है वाइजैग में, और जो तीसरा है उसको आपको लेना है भटिंडा में। अब जरा जल्दी से भटिंडा की लोकेशन को रिकॉल कर लो और मुझे ये बता दो कि भटिंडा को लिखते ही हमारे दिमाग में क्या आता है। प्रोडक्ट पाइपलाइन गया वहां, पानीपत में रिफाइनरी है, वहां से भटिंडा क्या जा रहा है, प्रोडक्ट पाइपलाइन, हैंड रेस कर दो। और जो ये जॉइंट वेंचर है ये HPCL विद मित्तल एनर्जी है। इट इनकॉर्पोरेट प्रोडक्ट पाइपलाइन विद क्रूड गिविंग मी द पॉसिबिलिटी ऑफ रिफाइनिंग फैक्टर। सो HPCL आ गया नेक्स्ट। उसके बाद आप ऐड करो BPCL। BPCL इनकॉर्पोरेट्स अगेन 3 रिफाइनरीज, 3 रिफाइनरीज में फिर से मुंबई आएगा, कोच्चि आएगा, और जो तीसरा आएगा जिसको आप कोरिलेट करते हैं विद द रेफरेंस ऑफ जॉइंट वेंचर, वो बिना में है, मध्य प्रदेश में। ये जॉइंट वेंचर है ओमान रिफाइनरी के साथ। लिस्ट कंटिन्यू करते हैं। BPCL के बाद आप नुमालीगढ़ डिगबोई बरौनी पाइपलाइन पर है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है वो ऑयल इंडिया लिमिटेड की है, तो आप या तो नुमालीगढ़ लिख लो या ऑयल लिख लो। ऑयल आपको बताया था प्रोडक्शन कैटेगरी में इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट। इसके बाद ONGC को आप ले लेंगे, तो ONGC मेरे पास दोनों डोमेन में आ गया। ONGC इज इन प्रोडक्शन एंड इन प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑल्सो। ONGC का एक तो आपका ततीपका आंध्र प्रदेश में है, आई एम जस्ट राइटिंग आंध्रा, और जो दूसरा है वो MRPL है, वो फुली ओन्ड सब्सिडरी है। जैसे ही नाम लिख देंगे मैंगलोर, यू शुड बी राइटिंग इट एज मंगलुरु, हमने पुराना नाम लिख दिया, मंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम लिमिटेड, ये फुली ओन्ड सब्सिडरी है ONGC का। और इसके बाद जो आपकी 3 रिफाइनरीज हैं वो प्राइवेट सेक्टर की रिफाइनरीज हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड एंड SR ऑयल लिमिटेड, तीनों का लोकेशन जम। 23 ऑपरेशनल रिफाइनरीज मेड इजी। हैंड रेस कर देना, समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब हम बात करते हैं ऑयल पाइपलाइन या ऑयल फैक्टर की, तो यू हैव टू टेक अप प्रोडक्शन, यू हैव टू टेक अप प्रोसेसिंग, क्योंकि पाइपलाइन के फैक्टर पर ही आप ONGC और IOCL को कंपेयर करेंगे, अदरवाइज इट्स डिफिकल्ट। पाइपलाइन नेटवर्क इनकॉर्पोरेट गैस पाइपलाइन आल्सो। And when I talk about gas pipeline, I have got a list. I don't need to tell you that it is Gas Authority of India Limited. और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो पहला कैटेगरी है उसको बोलते हैं नेशनल गैस ग्रिड। नेशनल गैस ग्रिड इनकॉर्पोरेट विदाउट एनी डाउट HBJ पाइपलाइन, B प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट। ये मुझे कितनी आसानी से सारे फर्टिलाइजर प्लांट्स में मदद कर देगा, आप थोड़ी देर बाद देख लेना। उसके बाद C बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन गैस ग्रिड, अमंग द प्रिंसिपल वंस। नाम लिख लिया तो जल्दी से बताना, फिर हम इसके एक्सटेंशंस आपको समझाते हैं। क्योंकि जब आप गैस पाइपलाइन में नेशनल गैस ग्रिड की बात करते हैं तो दीज आर द इम्पोर्टेंट वंस। बाकी भी छुटमुट है तो उनके बारे में तो बात करना ही है, अभी थोड़ी देर में कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ नेशनल गैस ग्रिड की बात कर रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर गो एट, जल्दी जल्दी से करो गो एट। जो अम्ब्रेला प्रोजेक्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, चाहे उसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति को बात करो या PLI की बात करो, वो हमें इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर सबके साथ ऐड करनी है, तो हम उनको फिर बाद में ऐड करते हैं। ये थोड़ा सा कन्वेंशनल ट्रैक में जिसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट अपडेशन हमें देनी पड़ती है, तो वो हम दे रहे हैं। ठीक है, अब हम आपको समझा रहे हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट HBJ पाइपलाइन, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करनी है हजीरा, ये गुजरात में है, ऑलमोस्ट इधर। हजीरा से आपकी जो पाइपलाइन है वो एक्सटेंड करती है टुवर्ड्स मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आप एंटर करोगे तो यू विल एंटर प्लेस कॉल्ड झाबुआ। झाबुआ से ही आपको आगे बढ़ना है, तो झाबुआ से आप आगे बढ़ेंगे तो यू विल गेट द प्लेस कॉल्ड बीजापुर। बीजापुर इज अप सेंटर नंबर 2 दैट यू हैव टू अप्लाई। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में एंटर करके छोटे छोटे सेंटर्स लाइक झांसी एंड ओराई ले सकते हैं। आई वांट टू सिंपली मार्क जगदीशपुर विद कानपुर, और कानपुर से थोड़ा सा नॉर्थ में जाएंगे शाहजहांपुर। अब हम लाइन बना रहे हैं, आप ऐड करते जाओ।
फ्रॉम हजीरा, गुना में है बीजापुर, मैप में आपको गुना ही दिखेगा तो इसलिए हमने गुना लिख दिया ब्रैकेट में। उसके बाद आप जाते हो वाया झांसी ओराई टू कानपुर, तो झांसी ओराई हमने मिस कर दिया, यहाँ पर हम कानपुर पर पहुंच गए। कानपुर से आपकी पाइपलाइन हो रही है बाइफरकेट, एक जा रही है जगदीशपुर और दूसरी गई है शाहजहानपुर। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ही डोमेन है कि वो तापी पाइपलाइन को जो फजिल्का तक पहुंचेगा, फजिल्का कम से कम यहाँ पर आप डिमार्केट कर सकते हो, जो हमारा फजिल्का पंजाब में तापी पाइपलाइन का जो एक्सटेंशन है, अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दे रहे हैं। लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली। सेंट्रल एशियन रीजन का जो इंडिया का वन ऑफ द वेरी एग्रेसिव काइंड ऑफ जियोपॉलिटिकल इंसेंटिव है, वो यही है ना, गैस पाइपलाइन। तो जो ये पाइपलाइन है फजिल्का तक पहुंचेगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको इंटरनेशनल गैस ग्रिड में फजिल्का को कनेक्ट करेगा विद द एग्जिस्टिंग पाइपलाइन। अब एचबीजे पाइपलाइन को एचबीजे क्यों बोलते हैं? एच एज इन हजीरा, बी एज इन बीजापुर, जे एज इन जगदीश। ये सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको ये समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। जगदीशपुर से हल्दिया एंड बोकारो से धमरा जो है हमारा पाइपलाइन नंबर 2 है, 15,000 किलोमीटर का। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमने बी पार्ट में मार्क करा है। तो जगदीशपुर मैप पर ही है इसलिए लिख दे रहे हैं। जगदीशपुर जो आपका टर्मिनस है एचबीजे पाइपलाइन का, वहां से आप एक्सटेंड करोगे हल्दिया तक, और बोकारो से हम एक्सटेंड करेंगे धमरा तक। हल्दिया आपके पाइपलाइन ग्रिड में ऑलरेडी आ गया है। ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट इज 15,000 kilometer of new pipeline development by Gas Authority of India Limited. It is largely been utilized for the revival of fertilizer plants. बात करेंगे गोरखपुर, बरौनी, सिंदरी, इन सब का रिवाइवल इसके साथ एसोसिएटेड है। जगदीशपुर से आप गैस आगे ले जा रहे हो टुवर्ड्स हल्दिया, बोकारो, धमरा। अच्छा, जब आपने अपने पाइपलाइन को लिंक किया जगदीशपुर से टुवर्ड्स बरौनी जहां पर हमारा एक फर्टिलाइजर प्लांट भी है, और आपने प्रोडक्ट पाइपलाइन भी लिया हुआ है वहां पर विद रिफाइनरी ऑफ IOCL, वहां से आप पाइपलाइन को एक्सटेंड कर रहे हो, सी लिख रहे हैं, बरौनी से गुवाहाटी। आप बोलोगे बरौनी में तो IOCL का पाइपलाइन है, तो यहाँ पर गैस पाइपलाइन कैसे आया? तो जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है, इट विल मार्क द रिवाइवल ऑफ बरौनी केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल गैस। तो ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट में आप बरौनी को ऐड कर रहे हो, वहां से आप पाइपलाइन को ले जा रहे हो गुवाहाटी में। नॉर्थ ईस्टर्न मैप यहाँ पर मैप पर मार्क करना बहुत मुश्किल होगा, तो आई एम क्रिएटिंग अ ग्रिड डायग्राम, थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझना। इसी मैप पर कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद इसको जूम आउट कर देंगे तो कंपैरिजन आसान हो जाएगा। अब ध्यान से देखना हम कर क्या रहे हैं। आपकी पाइपलाइन को आपने गुवाहाटी तक तो पहुंचाया, बरौनी से आप गुवाहाटी पहुंचा रहे हैं। अब इसमें जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड का मैप खोलोगे बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा। इट बेसिकली इनकॉर्पोरेट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रोमिनेंट सेंटर्स। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे देखते जाओ। लोकेशंस आप लोगों को पता है, सिलीगुड़ी लेना है सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में, इसको लिंक कर देना है सिक्किम से गैंगटॉक। सिलीगुड़ी से आप चले जाएंगे गुवाहाटी, गुवाहाटी से आपकी एक पाइपलाइन तो सीधी जा रही है टू ईटानगर, दूसरी एक्सटेंड कर रही है दिमापुर। दिमापुर मतलब आप नागालैंड में पहुंच गए, आर यू नोटिसिंग? और अगर मुझे सिलीगुड़ी से इसको थोड़ा सा इधर एक्सटेंड करना पड़े तो आपने अभी ऑलरेडी लिखा बरौनी। तो कैसे पाइपलाइन याद हुआ? बरौनी से लेकर गुवाहाटी तक आपने बनाया पाइपलाइन एज नेशनल गैस ग्रिड का एक, उसी को एक्सटेंशन दे दिया नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड। और जो नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड है ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंटर बन सकता है। जॉइंट वेंचर है IOCL का, ONGC का, ऑयल इंडिया लिमिटेड का, क्योंकि ऑयल इंडिया लिमिटेड का फंक्शनिंग ग्राउंड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, और ऑयल इंडियन का ही जो आपका नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, इसको इंद्रधनुष गैस ग्रिड भी बोलते हैं। और अगर आप थोड़ी देर मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट लेकर बैठोगे, आपने एक्चुअली सारे नॉर्थ ईस्टर्न
प्रिंसिपल सिटीज को इनकॉर्पोरेट कर लिया। सारी कैपिटल सिटीज तो आई गई। नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड इज एक्सटेंशन ऑफ बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन, और क्योंकि इसको मैप पर बनाए तो थोड़ा सा हॉटस्पॉट टाइप का हो जाएगा, इसलिए हमने इसको डिमार्केट आउट कर दिया। तो ये मेरा कैटेगरी नंबर डी हो गया। HBJ पाइपलाइन जगदीशपुर, दैट इज प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन एंड नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड। नॉर्थ ईस्टर्न गैस ग्रिड को बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनाकर याद कर लो, कभी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और जो कोच्चि मंगलुरु है वो तो आपको समझ में आ रहा है कि वाया केरला यू आर टेकिंग। अब कोच्चि मंगलुरु को अगर आपने जज करना है तो आप यहाँ पर जज कर लो इसको। कोच्चि इज अ मेजर पोर्ट सिटी, वहां से आप इसको लेकर जा रहे हो टुवर्ड्स कनेक्टिंग इट टू बैंगलोर मंगलुरु, तो मंगलुरु लेकर जाइए, कोच्चि टू मंगलुरु और कनेक्ट कर दो इसको बैंगलोर से। ये ऐसा आपका पाइपलाइन बन जाएगा। ये तो मेगा सिटीज वाला पाइपलाइन है, इसको जज करना तो कोई ज्यादा मुश्किल काम है ही नहीं। और कोच्चि में कहां से आ रहा है नेचुरल गैस? आपने ऑरेंज कलर का डिमार्केशन लिया हुआ है, हैंड रेस कर दीजिए। व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लर्न गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड विद द नेशनल गैस ग्रिड, क्योंकि इंटरनेशनल डोमेन में आपको बताया तापी पाइपलाइन में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ प्रोमिनेंट परमिट। उसके अलावा फिर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन भी है, जिसमें यू टेक अप द रेफरेंस ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एज द प्रोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट। बता देते हैं, पहले बताओ ये वाला डायग्राम हो गया। ऐसे नाम याद रखोगे तो बहुत आसानी से याद होगा, नहीं करना है इस तरह से नहीं करोगे तो फिर मुश्किल क्रिएटेड रहेगी, क्योंकि आप कहीं पर भी सर्च करो आपको तो बहुत आराम से ही मिल रहा है सारा इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब इसको रिमूव करते हैं और इसी पर ऐड करते हैं। जब आप नेशनल गैस ग्रिड के बारे में बात करते हैं एंड यू ट्राई टू टेक अप दी अदर कंस्टिट्यूएंट, सो कंस्टिट्यूएंट नंबर 2 अगर करके लिखें तो इट इज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे कंट्री में जो पाइपलाइन गैस का पाइपलाइन है, वो पाइपलाइन में सिर्फ नेशनल गैस ग्रिड थोड़ी है, सिटी भी है, तो इसमें इंद्रप्रस्थ। और इसके अलावा तीसरा आपका चलता है लिक्विड नेचुरल गैस LNG regasification centers। तो वी हैव डिफरेंट एंटिटीज दैट आर इंपोर्टिंग। पाइपलाइन नेटवर्किंग के आप इस तरह से कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, नेशनल, फिर सिटी, फिर LNG, और फिर चौथा बना लो इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में आप तापी पाइपलाइन के बारे में बात करें। दहेज इज द माइनर पोर्ट ऑफ गुजरात, मुंद्रा इज अ पोर्ट गुजरात। So, सब इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो हमारे रेडार पर होने चाहिए। अब गो अहेड दो, वी आर टेकिंग अप रेफरेंस ऑफ 2 more एनर्जी रिसोर्स कैटेगरी, जिसके बाद आगे बढ़ेंगे। पाइपलाइन का रिमाइंडर आएगा जैसे हम आपको इंडस्ट्रीज पर लेकर जाएंगे। फार्मास्यूटिकल एंड फर्टिलाइजर आर क्वाइट इंपॉर्टेंट इन द प्रेजेंट। स्टॉपिंग स्क्रीन शेयर फॉर अ व्हाइल। रिविजन जल्दी जल्दी से। When I talk about the important locations that are identified with infrastructure development in India, pipeline infrastructure की हम बात कर रहे हैं, ज्यादा किसी की बात नहीं कर रहे, तो it gives me the logic of number 1, the pipeline that goes up with both Gas Authority of India Limited, IOCL, ONGC सबके साथ, तो किस तरह से organize करें। When it comes on to exploration and production, I give highest status to ONGC. ONGC, which is the most prominent player in the production exploration, is also a significant player in processing and marketing. But IOCL, which is the most prominent player in processing and marketing, doesn't have any role in production and exploration. बात समझ में आई? IOCL के पास 9+2 refineries हैं out of 23, तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि that it is a principal player. ONGC has got its own at Tatipaka and the fully owned subsidiary, that is MRPL Mangaluru में, तो 2 refineries it has, so it has some say when it comes on to refineries. Gas Authority of India Limited IOCL के साथ साथ पाइपलाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो जब आप IOCL की पाइपलाइन के बारे में बात करते हैं तो आप सिर्फ 2 पाइपलाइन के बारे में बात करते हो मेजरली। छोटी छोटी पाइपलाइन विद देयर नेम्स इटसेल्फ सेज वेयर दे आर। सो इट इज सलाया मथुरा पाइपलाइन, बोलते तो सलाया मथुरा है, लेकिन मथुरा से आप उसको पानीपत पर ले जाकर बाइफरकेट कर रहे हो विद जालंधर एंड बठिंडा। फिर बठिंडा में आपने मित्तल जॉइंट वेंचर विद HPCL के साथ एक प्लांट स्टैब्लिश किया। सो यू हैव गॉट डेविएशन। सिमिलरली डिगबोई बरौनी पाइपलाइन बोलते हैं, पर डिगबोई बरौनी पाइपलाइन को अगर आप बरौनी से बाइफरकेट नहीं करके सिंदरी से हल्दिया नहीं ले जाते तो हल्दिया में रिफाइनरी कहां से आ गई?
और गोरखपुर से कानपुर भी लिंक कर रहे हो, तो पाइपलाइन का नाम अपने आप को फुली जस्टिफाई नहीं करता, इसलिए ग्रिड बना दिया। एचबीजे पाइपलाइन में भी आप शाहजहांपुर तक ले जा रहे हो। शाहजहांपुर में अनोला है, जहां पर आपका इफ्को का फंक्शनिंग प्लांट है। आपको अगर याद आ रहा हो, फर्टिलाइजर में हमने इफ्को के बारे में बात की थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट यूरिया, जिसको हमने कन्वेंशनल यूरिया से नीम कोटेड, अब सल्फर कोटेड यूरिया, नैनो यूरिया की बात करते हैं, तो नैनो यूरिया का प्रोड्यूसर इफ्को है। सो यू हैव टू टेक दोज इनटू योर स्ट्राइड। सो लोकेशन वाइज काम आसान बनता है कि नेचुरल गैस बेस्ड वी आर हैविंग फर्टिलाइजर प्लांट आउट देयर, and the list of refineries gives you the logic of naphtha. Naphtha is the most important feedstock of chemical fertilizer in our country. सो इस तरह से याद रखेंगे। जब भी गैस ग्रिड बनाओ तो इस तरह से रिवीजन लोगे तो आसानी होगी। तो बरौनी से गुवाहाटी पहुंच गए, और गुवाहाटी से एक मेंटल मैप ले लो कि वी आर विलिंग टू कनेक्ट, वी हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग all the major capital cities of northeastern state with Indradhanush gas grid, which is a joint venture of 5 public sector players. काम खत्म, ठीक है। अच्छा, अब आ रहे हैं जल्दी से, छोटा सा काम है, इसमें ज्यादा काम नहीं है, पहले इसको पिकअप करते हैं, उसके बाद आपको हमने पहले ही बता दिया, इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट एमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। याद आ रहा है कि नहीं? कौन सा कैटेगरी का पोल्यूटेंट है? प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? जल्दी से आंसर बता दो बच्चों। Sulfur dioxide is included in the category of principal pollutants, air pollutants. It is primary pollutant or secondary pollutants? Primary pollutant, shabash. And primary pollutant, that is the reason in the air pollution abatement we are having CDM around thermal power plants also. तो कोल के साथ थोड़ा लंबा चौड़ा काम है, उससे पहले क्या करते हैं जल्दी से, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, UCIL। झारखंड में अभी ये प्लेसेस बहुत माइन्यूट होते हैं, न्यूज़पेपर में आएंगे तो आपके क्वेश्चन में पॉसिबली आ सकते हैं। इट इज लार्जली विद सिंहभूम क्रेटोन बेल्ट। इसमें आप थोरियम माइनिंग के बारे में ज्यादा बात करते हैं। थोरियम जाता है मोनोजोइट सैंड के साथ। मोनोजोइट सैंड है केरला में, जो कोल्लम से कोट्टायम के बीच में एक्सटेंड करता है, एंड इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट थोरियम deposit of the world. So mining goes with UCIL, Uranium Corporation India Limited, and IREL, Indian Rare Earth Limited. ये दोनों हैं जो Atomic Mineral Directorate of Exploration and Research के अंतर्गत काम कर रहे हैं। And when I talk about Department of Atomic Energy, you are taking up NPCIL, Nuclear Power Corporation of India Limited. तीसरा नाम यहाँ दे दो, Nuclear Power Corporation of India Limited, NPCIL, is about energy, power generation. And though it is less known, you can add that also, because you never know, I encounter question Department of Atomic Energy. So I have got Bhavini also with it. So kindly demarcate them into 2 categories. ऐसे, और 500 megawatt prototype fast breeder at Kalpakkam is of Bhavini. अभी हम मैप दिखा रहे हैं। नरोरा इन उत्तर प्रदेश, रावत भाता इन राजस्थान, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कायगा कर्नाटका, चेन्नई, and Kundalkulam, Tamil Nadu. It is with Kalpakkam that you have the functioning domain of. So let me write it. I have already used red color here. So इस पर ऐसे demarcate कर देते हैं. I think it would be easier for you. All these nuclear power plants, operational and new site is of NPCIL. Only this one is what I have talked about as well. Collieries Corporation Limited, joint venture. Ministry of Coal के जब आप डोमेन में बात करते हैं तो you talk about 3 principal public sector players. 2 of them are PSEs of Union Government, Coal India Limited and Neyveli Lignite Corporation Limited. Coal India Limited का है pan Indian existence. Neyveli Lignite Corporation का जो functioning location है वो 3 स्टेट पर है। अब जैसे ही नाइवेली लिखा तो अपने आप ही नाम आ गया, भाई तमिलनाडु में तो होना ही चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम तमिलनाडु इट हैज गॉट इट्स फंक्शनिंग अराउंड इन गुजरात, पालना, जैसलमेर, बाड़मेर। बाड़मेर को अपने दिमाग में स्टिक कर लो, क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग भी है, नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग भी है, लिग्नाइट कोल। उमरसर इज इन रन। तो भाई नाइवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन को तो सिर्फ नाइवेली में होना चाहिए, दिमाग में ऐसा आता है ना, पर ये है एसोसिएटेड तमिलनाडु जहां पर नाइवेली है, उसके अलावा गुजरात, उमरसर जो भी लिग्नाइट कोल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ आवर कंट्री है,
एंड राजस्थान जहाँ जैसलमेर बाड़मेर के अलावा पालना भी है। कोल इंडिया लिमिटेड का जो फंक्शनिंग ग्राउंड है वो बड़े लंबे चौड़े एरिया में है। एंड व्हेन आई टेक अप द रेफरेंस ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड फंक्शनिंग, आपको कुछ एनसीईआरटी बेस्ड स्टेटमेंट दिए थे अगर आपको याद आ रहा हो। रिवर बेसिन्स ऑफ पेनिनसुला, याद आया कि नहीं, आर कोल बियरिंग। इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो अलग जाता है, वो है शिव सागर। अभी थोड़ी देर पहले पाइपलाइन नेटवर्किंग में आपको शिव सागर बताया था। आपको सारे नाम याद रखने की जरूरत है भी नहीं भी है, दोनों तरीके से है। बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, कोल इंडिया लिमिटेड का फंक्शनिंग ग्राउंड के बारे में अगर हम बात करें, तो कोल इंडिया लिमिटेड की जितनी सब्सिडरी हैं वो अपने आप ही आपको बताती हैं दैट दीज आर द एरियाज वेयर वी आर प्रोड्यूसिंग कोल। मोर देन 90% ऑफ इंडियन कोल इज प्रोड्यूस्ड बाय कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के फंक्शनिंग ग्राउंड्स कहाँ कहाँ पर हैं? तो स्टेट लिखने के बजाय हम लिखते हैं इट इज इन दामोदर वैली, इट इज इन सोन वैली, it is in Hasdo Valley, it is in Mahanadi Valley, it is in Vardha Valley, it is in Godavari Valley. I think I've given you all the names. और कुछ कुछ नाम बड़े पॉपुलर हैं, कुछ कुछ नाम इतने पॉपुलर नहीं है। झरिया, गिरडी, महानदी के साथ गया, संबलपुर, वर्धा के साथ गया, उमरेद, और गोदावरी के साथ गया, सिंगरेनी भी आएगा, उसके अलावा रामागुंडम एंड ऑफ कोर्स सिंगरेनी। ये सब कोल प्रोड्यूसिंग एरिया है और ये सारे के सारे नाम आपके एनटीपीसी के थर्मल पावर प्लांट भी होंगे, आपके लिए अपने आप ही काम आसान हो गए। कौन कौन से एरियाज में कोल बियरिंग हुआ? सब के सब रिवर बेसिन। खाली एक नाम है जो आपके पेनिनसुलर रिवर से बाहर जाता है या पेनिनसुलर एरिया से बाहर जाता है, स्टार मार्क करके इधर लिख देते हैं, इट इज शिव सागर ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली। तो ब्रह्मपुत्र वैली में आप नेचुरल गैस को भी रूल आउट करते हो, बट क्रूड ऑयल एंड कोल प्रोडक्शन, coal production correlate essentially with Coal India Limited. Of course, captive mines and non-captive mines का जो logic हमने learn किया था, it will now be applicable to it. Coal production associate with thermal power plants as the principal user of coal. उसके अलावा coal का इस्तेमाल iron steel plant में है, cement में है. Now the decline is there under CEPI because we take up the reference of CPCB recognizing them as most polluting. तो सब्सटीट्यूशन सबके साथ चल रहा है, बट इंडिया डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू हैव डिक्रीज ऑफ कोल फ्रॉम नियर 60% टू 0% इन लाइकली फ्यूचर। जब आप नेट जीरो की बात कर रहे हो 2070 तक, तब भी आप कोल डिपेंडेंसी को जीरो करने की बात नहीं कर रहे हो। कोल डिपेंडेंसी को जीरो नहीं कर पाएंगे हम, ऑफ कोर्स वी वांट टू रिड्यूस इट। इसलिए एनर्जी मिक्स स्ट्रेटजी। आई थिंक आई हैव गिवन यू सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग विद माइनिंग सेगमेंट, और उसके साथ एक पाइपलाइन का रेफरेंस भी आ ही गया। सो वी कैन इजीली नाउ मिक्स एंड लर्न मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। सर्विस में ट्रेड भी आएगा, पर हम थोड़ा सा सेग्रीगेट करके स्टडी करेंगे। सर्विस में रोड, रेल, सिविल एविएशन भी आएगा, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हमने आपको हमेशा एडवाइस करा है, क्वेश्चंस इफ यू सी लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ क्वेश्चन, एकदम जिसको कहते हैं ना जनरल अवेयरनेस बेस पर है, कि कोई भी नाम जो मेरे न्यूज़पेपर में आ गया वो मेरे पेपर में दिखाई दे गया। लेकिन जब आप बात करते हो एक ब्रॉडर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, क्योंकि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का एकदम शॉकर था, इट वाज टोटली डूइंग अवे विद व्हाट वाज देयर फॉर लास्ट फ्यू इयर्स। तो जो चीज आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप उसको फुली प्रिपेयर करें। I do take the trend of the questions to judge where I am going, so you do that. But कभी भी किसी भी चीज को इग्नोर आउट नहीं करना। तो कम से कम वो नाम, हम बहुत बेसिक मिनिमम नाम आपको लिखवा रहे हैं वो, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो एनसीईआरटी बेस्ड है। एनसीईआरटी में इससे भी ज्यादा नाम दिए हुए हैं जितने नाम हम आपको बता रहे हैं। आप उन नाम को कम से कम अपने लिए इजी बना लीजिए, और हमने मेरे ख्याल से आपको ये तरीका सिखा दिया कि इजी कैसे बनते हैं नाम। एक बार उसको मैप पर प्लॉट कर लो, नाम बन गए आसान। उसके बाद नाम याद करने में कभी मुश्किल नहीं होगी। अब आंख बंद करके सोचो, इंद्रधनुष गैस ग्रिड,
ये आंख बंद करके सोचो, डिगबोई बरौनी पाइपलाइन, आर यू इन द पोजीशन ऑफ रिकॉलिंग मैक्सिमम इफ नॉट ऑल नेम्स? और ऐसे लिस्ट बनाते रहो, रट्टा मारते रहो, कहीं है कोई प्लेस कॉल्ड बरौनी, कहीं है कोई प्लेस कॉल्ड, क्योंकि कोलकाता जैसे प्लेस को हम सब जानते हैं, बट सिलीगुड़ी आ जाए, बोंगाई गांव आ जाए, गुवाहाटी आ जाए, दिमाग में टिकता ही नहीं है। अब आपने उसको मैप पर प्लॉट कर लिया, ये बन गया आपका मेंटल मैप। 2 बार की रिविजन चाहिए। क्वेश्चन कोई गारंटी नहीं कर रहा, हम थोड़ी गारंटी कर रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा, पर क्वेश्चन आया तो अटकोगे नहीं, ये वाला पॉइंट है। कल का टेस्ट कैसा रहा था आप लोगों का?